morning students. Today we shall start chapter number 3, Analytic Conditions of Equilibrium of Coplanar Forces. First we give some definitions. First we define classification of forces. There are three types under which a force may be classified. These are action and reaction, attraction and repulsion, and tension and thrust. First we define action and reaction. Whenever two bodies are in contact with each other, each exerts a force on the other at the point of contact. Then by action is meant the force exerted by one body on the other, and by reaction is meant the force exerted by the second body on the first. These forces are equal in magnitude but opposite in direction and act on different bodies. This direction depends upon the nature of the surface in contact. Means action क्या है? जो हमारा फोर्स लगता है एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर, और रिएक्शन क्या है? जब दूसरी बॉडी अपना फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है उसको बोलते हैं रिएक्शन. नाउ वी डिफाइन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. If the two bodies approach or tend to approach each other, then the force is called attraction, and when the bodies may move away or tend to separate, then the force is called repulsion. This is clear. When two bodies move to each other, then this force is attraction, and when the bodies move away or tend to separate, then the force is repulsion. Now we define tension and thrust. When a body is pulled by means of a string, then the force which is exerted is called the tension, and when the body is pulled or pushed by means of a rod, then the force is called thrust. This is the thrust. If a rod AB is used to push the body at A by the application of a force P at B, then the thrust are these ones. These are the thrust. Now we discuss equilibrium of three forces acting on a rigid body. If three forces acting on a rigid body keep it in equilibrium, then the forces are coplanar. This is the result. Now we prove a theorem. If three forces acting on a rigid body keep it in equilibrium, then they must either meet in a point or must be parallel. Means क्या है? अगर three force act कर रहे किसी body पे और उस body को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, तो फोर्सेस हमारे या तो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे या फिर क्या होंगे? पैरेलल. लेट अस प्रूव दिस. लेट P, Q and R be the three forces acting on the rigid body and be in equilibrium. Therefore, the forces are coplanar by the above result. Now there are two cases. Either all the three forces are not parallel or two of them are parallel. First we discuss case first. If all the three forces are not parallel, then at least two of them, say P and Q, must meet at a point O. तो हमने मान लिया ये P force है, ये Q force है, ये O point पे meet कर रहे हैं, and therefore the resultant of P and Q must passes through O. तो उनकी resultant भी किससे पास करेगी? O से. Now since P, Q are in equilibrium, therefore R must be equal and opposite to the resultant of P and Q. तो जो R फोर्स है, P, Q R इक्विलिब्रियम में है, तो R फोर्स रिजल्टेंट के क्या होना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, एंड मस्ट पास थ्रू O. देयरफॉर फोर्सेस मीट एट ए पॉइंट. नाउ वी डिस्कस सेकंड केस. इफ टू ऑफ द फोर्सेस P and Q आर पैरेलल, then their resultant is also parallel to them. We have already discussed. Since R balances the resultant, therefore direction of R must coincide with the direction of the resultant of P and Q. Therefore, the third force R is also parallel to P and Q. This is the result. Now we give a trigonometrical theorem. This is very important for this chapter. If G is a point in the side AB of a triangle OAB, and if OG divides AB into two parts M and N, and the angle AOB into two parts alpha and beta, and if angle OGB is equal to theta, then these results hold. मीन्स क्या गिवन है हमें? OAB एक ट्रायंगल है, G पॉइंट क्या है? AB को M:N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और G को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल को किस में डिवाइड कर रहा है? अल्फा और बीटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एंड एंगल OGB
is given to be theta. Now we have to prove that m plus n cot theta is equal to m cot alpha minus n cot beta, and m plus n cot theta is equal to n cot a minus m cot b. Now we prove the result. Here we have m by n. m by n हमारे पास क्या हो जाएगा, ag by gb. अब ag by gb को हमने geo से मल्टीप्लाई कर दिया, geo से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया ag by geo and geo by gb. नाउ बाय साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, a ओवर साइन a इक्वल टू b ओवर साइन b इक्वल टू c ओवर साइन c. देयरफॉर az ओवर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू geo ओवर साइन a and which is equal to a over sin 180 minus theta, क्योंकि this angle is 180 minus theta. Now az over geo, अब इन दोनों को लेके चलते हैं फर्स्ट टू पार्ट्स को. az over geo क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाय साइन ए. साइन अल्फा, अब एंगल ए है हमारे पास, क्या हो जाएगा एंगल ए थीटा माइनस अल्फा. क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू थीटा, therefore a is equal to theta minus alpha. Similarly geo by gb हमारे पास आ जाएगा sin theta plus बीटा over sin बीटा. Therefore m by n हमारे पास क्या आ गई, sin alpha over sin theta minus alpha into sin theta plus बीटा over sin बीटा. अब हम इनका फॉर्मूला लगा देंगे, sin theta minus alpha का फॉर्मूला लगा दिया हमने sin theta plus बीटा का. Therefore we get m by n हमारे पास क्या आ गया, this one. अब इसमें से हम साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन निकाल लेंगे, नीचे से हम कॉमन निकालेंगे साइन अल्फा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो m बाय n हमारे पास आ जाएगा कोट बीटा प्लस कोट थीटा ओवर कोट अल्फा माइनस कोट थीटा. देयरफॉर m कोट अल्फा माइनस m कोट थीटा इज इक्वल टू n कोट बीटा प्लस n कोट थीटा. दिस इंप्लाइज m प्लस n कोट थीटा हमारे पास आ गया m कोट अल्फा माइनस n कोट बीटा. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. नाउ वी प्रूव सेकंड रिजल्ट. अगेन m by n, इसलिए क्या है हमारा ag by gb, इसको हम लिख सकते हैं ag by geo into geo by gb, which is equal to az by geo by sin फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा sin थीटा माइनस a ओवर sin a into sin b ओवर sin थीटा प्लस b, which is equal to sin b ओवर sin a. इसका फॉर्मूला लगा देंगे sin थीटा माइनस a का sin थीटा प्लस b का. फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे ये सब कैंसिल आउट होके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा m cot beta plus m cot theta is equal to n cot a minus n cot theta. Therefore m plus n cot theta is equal to n cot a minus m cot b. This is the required result. Now we prove some examples related to these theorems. First example is a heavy uniform rod is in equilibrium with one end resting against a smooth vertical wall and the other against a smooth plane inclined to the wall at an angle theta. Prove that if alpha be the inclination of the rod to the horizontal, then 2 tangent alpha is equal to tangent theta. हमें क्या गिवन है, हैवी यूनिफॉर्म रोड है जो इक्विलिब्रियम में है विद वन एंड रेस्टिंग अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल, जिसका एक एंड तो किस पे रेस्ट कर रहा है, वॉल पे, और जो दूसरा है वो रेस्ट कर रहा है किसी प्लेन के ऊपर, और वो जो प्लेन है वो वॉल के साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा. दिस इज द वॉल एंड दिस इज द प्लेन एंड दिस इज मेकिंग एंगल थीटा. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इफ अल्फा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड टू द हॉरिजॉन्टल. अब अल्फा क्या दे रखा है हमें, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दे रखा है रोड का हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हमें शो करना 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. लेट अस प्रूव दिस. Let 2a be the length of the uniform rod AB of weight W with and A in contact with the plane and B in the contact with the wall. अब हमें रोड की लेंथ नहीं दे रखी है तो हमने सपोज कर ली let 2a be the length of rod और इसका वेट हमने मान लिया क्या आएगा W. अब रोड हमारी यूनिफॉर्म है तो वेट कहाँ एक्ट करेगा, मिड पॉइंट पे, तो हमने मान लिया G इसका मिड पॉइंट है और इस पे हमारा वेट एक्ट कर रहा है. लेट एंगल ACB हमने मान लिया थीटा. नाउ लेट द लाइंस ऑफ नॉर्मल. अब ये ए बी रोड है हमारी, तो रिएक्शन कहाँ पे लाई करेगी, रिएक्शन हमेशा क्या होती है, नॉर्मल टू दी सरफेस. तो जो रिएक्शन है हमने मान ली लेट द नॉर्मल रिएक्शन बी एस एट ए एंड आर एट बी. एस तो हमारी है ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट पे हमने रिएक्शन मान ली आर, क्योंकि ये हमारी हमेशा नॉर्मल होती है. लेट जी बी द मिड पॉइंट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं.
देयरफॉर एंगल BOG हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। BOG एंगल हमारा एंगल BOG एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि ये अल्फा एंगल है, ये 90 है। सॉरी, BOG तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा क्या है वेट एक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। नाउ एंगल AOG, अब एंगल AOG है, ये हमारा क्या होगा 90 माइनस थीटा। वो कैसे? देखो, ये हमारी राइट एंगल है, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल AOG हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। ऑल्सो एंगल ABO, अब एंगल ABO एंगल देखेंगे हम, एंगल ABO इज इक्वल टू अल्फा एंड एंगल OGB कौन सा है? ये OGB एंगल। अब ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा हो गया 90 माइनस अल्फा। नाउ बाय MN थ्योरम, अब हम MN थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल AOB में। अब AOB ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा, दिस इज, ये एंगल हमारा कितना आया है, ये तो 90 माइनस थीटा हो गया, ये कितना है हमारा 90, और ये हमारी है रोड AB, तो AB रोड की लेंथ हमने 2a मानी है, वेट एक्ट कर रहा है मिड पॉइंट पे, तो दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A, तो देयरफॉर A प्लस A कोट 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू A कोट 90 माइनस थीटा माइनस A कोट 90 डिग्री। Now putting these value we get 2a tangent alpha is equal to a tangent theta. This implies 2 tan alpha is equal to tangent theta. This is the required result. Now we do example number 2. A beam whose center of gravity divides it into two portions A and B is placed inside a smooth sphere. Show that if theta be the inclination to the horizon in the position of equilibrium and 2 alpha be the angle subtended by the beam at the center of the sphere, then tangent theta is equal to this one. देखो हमें क्या गिवन है, एक बीम है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको दो पोर्शन में डिवाइड करा A एंड B, तो हमने मान लिया ये रोड AB है, G इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया इसने A एंड B में। अब हमें शो दैट इफ थीटा विद इंक्लिनेशन टू द होरिजन इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, थीटा क्या दे रखा है इंक्लिनेशन टू द होरिजन, इस रोड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन है थीटा एंड 2 अल्फा भी द एंगल सबटेंडेड बाय द बीम एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये स्फीयर है, तो जो हमारी ये रोड सेंटर पे सबटेंड कर रही है वो एंगल हमारा गिवन है 2 अल्फा, तो हमें शो करना है दिस वन। तो हमने मान लिया लेट A बी द बीम, G बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड लेट C बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब सेंटर ऑफ द स्फीयर है, अब A B रोड है, तो रिएक्शंस नॉर्मल रिएक्शंस है, R एंड S हमने मान ली A B पे एक्ट कर रही है। अब A B पे एक्ट कर रही है, ये हमारा स्फीयर पे टच कर रही है, तो ये 90 डिग्री पे होगी क्लियरली along the normal to the sphere and so passes through the center C, क्योंकि हमें पता है जो हमारा स्फीयर है उस पे जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा कहां से पास करती है, सेंटर से। नाउ द थर्ड फोर्स W मस्ट पासिस थ्रू C, और जो थर्ड फोर्स है वो भी किससे पास करेगा, सेंटर से। नाउ एंगल ACB इज इक्वल टू, नाउ एंगल ACB इज इक्वल टू 2 अल्फा, therefore angle CAB equal to angle CBA equal to 90 minus alpha. Since this angle is 2 alpha, अब इस ट्रायंगल की बात करें हम, अब ये दोनों बीइंग रेडियस इक्वल है हमारी AC और BC, अब ये दोनों रेडियस इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और इन तीनों का सम कितना होगा 180, तो हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180, तो एंगल A प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180, दिस इंप्लाइज 2 एंगल A इज इक्वल टू दिस वन, तो एंगल A हमारा आ गया 90 माइनस अल्फा। सिमिलरली एंगल B भी हमारा आ गया 90 माइनस अल्फा। ऑल्सो एंगल CG भी हमारा क्या है 90 माइनस थीटा, CGB हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारा 90 है, टोटल हमारा, देयरफॉर एंगल CGB हमारा क्या हो गया 90 माइनस थीटा। नाउ अप्लाइंग वही MN ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस B कोट एंगल CGB इक्वल टू B कोट एंगल CAG माइनस 8
A cot angle CG. Now putting these value, we get tangent theta is equal to B minus A upon B plus A tangent alpha. Thank you.